Hi look, welcome. Today we are going to learn about C++. Well, C++ is a popular language which is used to build apps, games and much more, including websites and even Unreal engines, etc. And C++ is an extension of language C. Before it was just C, then they added so many concepts like oops, etc. to make it happen as a C++. And the founder of C++ is Barjan पता नहीं भाई यहाँ पर है तुम ही पढ़ लो. So if you want to learn C++ to make websites any app in this generation, congratulations, you are a biggest idiot in 2026. Everybody knows that AI models are so powerful that can make 3D games in minutes. So why learn C++? Because when you're about to crack an internship or any type of a job, they will put a certain condition that you must know the fundamentals of C++. And even in interviews, HR can easily ask for plenty of questions on C++. For example, you're sitting in front of an HR and he will randomly ask what is a return type, what is a main function. What will you reply him? You will get trolled in front of them. पक्का. इसीलिए तुम लोग क्या करोगे? C++ basic सीखना, not in depth but a fundamental. And also another reason to learn C++ is when an AI writes your code, it might be relevant that what you want in it. So you need to understand what exactly this code is and make it code more comfortable according to you. Well, sometimes our AI models finish limits or may have very less limits. So what you will do, you will understand the code based on it, what exactly you required. You will write a prompt which is perfect. Understanding on code, this is all easy and it makes you better at writing prompts also. Also studying C++ because there are so many update has happened since past few years. When I was studying C++ in my pre-university college, they used to teach me not Python but just C++ only in Turbo C++. Are you understanding that? Which is a very old compiler and outdated compiler. And they have made so many changes in C++. For example, you don't find any .h header files and you don't write any more clear screen. Okay, now this playlist will not bore you like any other playlist in YouTube. Trust me, you will enjoy the process of learning C++. And with you, I will also learn few new things. The C++ language is very huge, it takes so much of time, so that's why I can't cover entire C++ one single video. So I have made a complete playlist which I cover entire main important C++ concepts in the playlist. So before diving into it, I must tell you a few things that you must know basic things. For example, what is a syntax and OR gates, AND gates, and what is a terminal and everything, which will make your video very easy. So that's why do your homework and come back. Alright, we are on the screen of VS Code. As you can see, this is the code over here. And we will run this code once and try to understand what exactly going on there. Okay, it's done. As you can see, this is the code. This code has given me the output of hello world. And this is the code and this is your code, as you can see. And you might ask me, bro, what is this? What in the world is going on here? Well, this code will give you certain output called hello world, as you can see in this code and as you can see in this terminal, right? इतना समझो कि तुम्हारा ये कोड है ना आउटपुट हेलो वर्ल्ड बोल के दे देगा एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस कोड इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप. लेट्स गो विद द फर्स्ट लाइन. यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. अभी ये हैश इंक्लूड क्या होता है और आईओ स्ट्रीम क्या होता है? एंड दिस प्लेस तुम्हें आउटपुट मिला है ना, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल. टर्मिनल एक प्लेस होता है जहाँ पे तुम लोग को एरर्स और आउटपुट दिखता है किसी भी कोड को. जहाँ यहाँ पर तुम लोग लिखे हुए ना, इस कोड को तुम लोग आउटपुट और एरर्स यहाँ पर देख लेते हो. This is the terminal. As you can see, the output is here. How did the output come as a hello world, which we have written over in this code? Well, we'll understand it step by step. First line में तुम लोगों को दिखेगा hash include iostream. अब भैया ये hash include iostream क्या होता है? Well, this hash is a syntax. अब ये syntax क्या होता है? Syntax को ऐसे समझो कि एक rules है. ऐसे समझो, for example, तुम लोग वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो और तुम लोग को टोमेटोज खरीदना है. अब क्या बोलोगे, 1 लीटर ऑफ टोमेटोज और 1 kg ऑफ टोमेटोज? ऑब्वियसली 1 kg ऑफ टोमेटोज. दैट मेक्स सेंस, राइट? बिकॉज एवरीबडी फॉलोज दैट. दैट्स अ रूल, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल सिंटैक्स. सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज मेड टू मेक अ कोड फॉर एनी टाइप ऑफ अ लैंग्वेज. दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल, C++ का सिंटैक्स ये है कि तुम जब भी हैश इंक्लूड इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसके सामने तुम्हें हैश लगाना ही पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ सिंटैक्स, इट्स एन रूल टू राइट दिस कोड. ज्यादा क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहिए, जस्ट फॉलो करो. देख, दिमाग में रख लो कि ये सिंटैक्स है,
हैश इंक्लूड के सामने हैश होना चाहिए बस. दिस इज सिंटैक्स. जस्ट गेट योर माइंड फिक्स दैट देयर आर सो मेनी सिंटैक्स इन दिस कोड लैंग्वेज. सबको कंफ्यूज होता है, मुझे भी कंफ्यूज होता है कि क्यों सिंटैक्स बना रहा है, बट एक्चुअली मेक सेंस व्हेन वी गो इनटू दिस. बेसिस के बारे में बात करें तो हम लोग उतनी डिटेल में जाने नहीं. हैश इंक्लूड. अभी हैश इंक्लूड क्या होता है? हैश का मतलब मैंने बता दिया, सिंटैक्स. और इंक्लूड का मतलब होता है जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड. भाई इसको डाल ले. वैसे तुम लोग कंप्यूटर को समझा रहे हो कि आईओ स्ट्रीम को तुम लोग इस कोड में डाल लो प्लीज. वैसे हम लोग कंप्यूटर को पूछ रहे हैं, हम लोग C++ के लैंग्वेज के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को पूछ रहे हैं कि प्लीज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. आईओ स्ट्रीम को इस कोड में इंक्लूड करो. एंड दिस एंटायर आईओ स्ट्रीम इज कॉल्ड एज हेडर फाइल. व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय सेकंड PUC, I used to have something like .h which makes that IO stream is an header file. Nowadays C++ is completely removed like stuff like this .h and so many other things. So yeah, IO stream क्या होता है? ओके, मैंने बता दिया कि IO stream एक हेडर फाइल होता है. अब ये हेडर फाइल क्या होता है? तुम लोग इस कोड में देख रहे हो ना सी आउट. हाँ, सी आउट का मतलब होता है कैरेक्टर आउटपुट. अभी सी आउट हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर आईओ स्ट्रीम डाल चुके हैं. इमेजिन हम लोग इस कोड में सी आउट इसीलिए इस्तेमाल कर सक रहे हैं क्योंकि हम लोग ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आईओ स्ट्रीम इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. अगर हमारे पास आईओ स्ट्रीम नहीं है कोड में तो हम लोग सी आउट को इस्तेमाल नहीं कर सकते. सी आउट इज अ पार्ट ऑफ आईओ स्ट्रीम. हम लोग सी आउट इसीलिए इस्तेमाल कर सक रहे हैं क्योंकि ऊपर आईओ स्ट्रीम है. इतना समझो बस अभी के लिए. ओके, तो फर्स्ट लाइन तो समझ लिया भाई, इंक्लूड करो आईओ स्ट्रीम फाइल सो दैट आई कैन यूज सी आउट इन दिस. इतना समझो कि हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम सो दैट आई कैन यूज सी आउट इन दिस कोड. दैट्स इट. फर्स्ट लाइन इज डन. गुड. Second line, using namespace std. And what is using namespace std? Using तो normal भाषा में हो गया English using. And namespace is something again a syntax. Just like तुम लोग hash इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये भी ऐसे ही एक syntax है, ठीक है, एक रूल है लिखने के लिए. std का मतलब होता है standard. So मैं बताता हूँ तुम लोग को, समझाता हूँ. देखो अभी पुराने जमाने में मतलब 3-4 साल पहले वी यूज टू हैव समथिंग एज std डॉट 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 4 डॉट्स. ओके, std 4 डॉट्स के बाद में हमको सी आउट लिखना था, ठीक है. बाद में इन लोग क्या कर दिया कि हर बार लिखना पड़ेगा. हर बार मैं आउटपुट बनाऊं तो हर बार std डॉट लिखना पड़ेगा. हेलो हाउ वाज लाइफ ऐसे कुछ लिखूंगा तो मुझे भी उसके सामने std ऐड करना पड़ेगा. ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, राइट. सो वी आर यूजिंग std एवरी सिंगल वेयर to get output. So what we have done is using namespace std is made a universal. ठीक है, यूनिवर्सल में तुम लोग इस कोड में कहां पर भी std बिना के तुम इस कोड को लिख सकते हो. पहले हमको std यूज करना पड़ता था. उसके बाद में एक रूल बना दिया कि std हर जगह पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. कोड के ऊपर एक बार लिख दो बस, हर जगह ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो जाएगा. हम लोग इतना समझो बस, इतना समझो बस. देखो हमारे ये C++ लैंग्वेज में क्या होता है पता है? हम लोग को मिलता है सो मेनी रिटर्न टाइप. ठीक है, रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप में हम लोग को है इंट. इंट का मतलब होता है इंटीजर्स. पता है ना आप लोग को इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स आर बेसिकली जस्ट नंबर्स. ओके, इंट इंटीजर्स. उसके बाद में हम लोग को पास आता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बोल सकते हो उसके लिए हाई, तो हाई एक स्ट्रिंग हो गया. इंटीजर्स का मतलब होता है नंबर्स, मतलब 1. ठीक है, और उसके बाद में हमको आता है बुलेन. बुलेन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स. ये बुलेन एक ऐसा थिंग है तुमको बताता है कि यह सच है या गलत है. बस इतना समझो. इंट का मतलब होता है इंटीजर्स. उसका मतलब होता है तुम लोग 1 यूज इस्तेमाल कर सकते हो. स्ट्रिंग का मतलब होता है इंग्लिश. उसके बाद में तुम लोग हाई बाय कुछ भी वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो. बुलेन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स. उसके बाद में हमको आता है फ्लोट. फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल 1.56. ठीक है, इंट का मतलब होता है नंबर्स. इंट का मतलब होता है नंबर्स और फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट में नंबर्स. ठीक है, हमारे पास हम इन सारे चीज़ों को रिटर्न टाइप बोल के बुलाते हैं. ठीक है, रिटर्न टाइप में हमको स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलेन हो गया, फ्लोट हो गया. उसके बाद में आपको डबल भी मिलेगा, समथिंग कॉल्ड एज डबल. उसके बाद में आपको मिलेगा कैरेक्टर्स. वैसे कैरेक्टर्स का मतलब होता है सिंगल वर्ड. फॉर एग्जांपल ए, ऐसे. डबल का मतलब होता है आपको एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल
फ्लोट यहीं तक लिख सकता है कि 1.56, बट डबल क्या कर सकता है 1.56733333 ऐसे एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर्स भी लिख सकता है। समझ रहे हो? हम लोग इन सारी चीज़ों को हम लोग बुलाते हैं रिटर्न टाइप। ओके, सो लेट्स जस्ट कम बैक टू दिस कोड। इंट मतलब ये एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। मेन मेन मतलब एक फंक्शन नेम है। इंट हो गया, इंट का मतलब होता है इंटीजर्स। अभी मैं बताता हूँ कि इंट यहाँ पर क्यों इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जीरो दिख रहा है ना तुम लोगों को, रिटर्न जीरो यहाँ पर एक कोड है जो जीरो को यहाँ पर भेज देता है। सो दिस इज इंट। क्योंकि हम लोग इंट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस कोड के अंदर हमारा एक जीरो अल्फाबेट है और रिटर्न को जीरो यहाँ पर रिटर्न करना है मेन फाइल के अंदर, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ क्या हो रहा है, मैं समझाता हूँ, कुछ कंफ्यूजिंग है, मैं समझाता हूँ। इंट मेन का मतलब होता है रिटर्न टाइप इंटीजर्स मेन। तो बल हम लोग बोल रहे हैं कि भैया इसके अंदर हम लोग जीरो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जीरो इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं रख रहा हूँ इंटीजर, ताकि मैं बोल सकूँ हमारे कंप्यूटर को कि मैं यहाँ पर जीरो इस्तेमाल कर रहा हूँ इस कोड के अंदर, ये है इंटीजर्स। मैं फंक्शन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि देखो मैं इंटीजर्स लिख दिया, इसके बाद में मैं अब जीरो इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद में तुम लोगों को दो एक्स्ट्रा एम्प्टी ब्रैकेट्स मिलेंगे। तो क्या क्या होता है ना कि हम लोग इसके अंदर हम रैंडमली फंक्शंस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, फिलहाल के लिए भूल जाओ। ये कंपलसरी है सिंटैक्स से, फंक्शन के बाद में तुम लोग को कुछ भी एक अंदर लिखना है। सिंस वी डोंट हैव एनीथिंग टू राइट, अभी इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो हम लोग इस ब्रैकेट को एम्प्टी कर देंगे। बट अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हम जब कोड लिख रहे हैं ना, इसको एम्प्टी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको एक नंबर जीरो देना चाहिए। इसीलिए हम लोग रिटर्न जीरो मतलब रिटर्न यहाँ पर जीरो को रिटर्न कर दे, मतलब इंट फंक्शन रिटर्न टाइप होता है ना, उसके बाद में मेन फंक्शन होता है ना, ये कोड के बाद में आउटपुट के बाद में रिटर्न जीरो, मतलब इसको जीरो रिटर्न कर दे भाई। समझ रहे हो? जीरो को यहाँ पर रिटर्न कर दो बस, इसीलिए हम लोग रिटर्न और इंट मेन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको समझ लिया भाई? अभी के लिए बस इतना समझो। इसके बाद में सेमी कॉलन एज इट इज, कोड खत्म हो गया है लाइन का, तो उसको अंदर सेमी कॉलन डाल दो। सो नाउ इट कम्स अ ब्रैकेट। सो ब्रैकेट क्या होता है? देखो मेन फंक्शन के अंदर कोड जो स्टार्ट होता है ना, हम कोड इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट ओपन हो गया या हमारा कोड हो गया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर हमें एंटायर कोड लिखना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हमारा कोड है, समझ रहे हो? इतनी समझो, बस इतना इतना सा समझो। हमारे मेन फंक्शन के अंदर कोड है, अभी हम लोग लिख रहे हैं ब्रैकेट, अभी हम लोग लिख रहे हैं ब्रैकेट, उसके अंदर सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड लाइन, उसके बाद में रिटर्न टाइप जीरो एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज एंटायर आवर कोड। व्हेन आई रन दिस कोड दिस इज व्हाट यू गेट। सो ये वाला हो गया। सो नेक्स्ट लाइन आता है सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब ये समझो क्या बोल रहा है भाई, सी आउट हेलो वर्ल्ड क्या है, ये दो ग्रेटर सिंबल क्यों है यहाँ पर एक दो ग्रेटर सिंबल क्यों है, मैं समझा देता हूँ। सी आउट का मतलब होता है इस वाले को आउटपुट में दिखा दो। यहाँ पर देख रहे हो ना हेलो वर्ल्ड, देख लिया? यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर आ गया, देख रहे हो? इस सी आउट क्या करता है ना, ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, तुम्हारे इस वाले वर्ड को आउटपुट में दिखा देता है, ठीक है। अभी हम लोग को आउटपुट में क्या दिखाएगा, क्रैप दिखा देगा। उसके बाद में तुम लोग को मिलेगा सी आउट हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया। उसके बाद में तुम लोग को ये दो चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर मिस कर दिया मैंने। सो ये जो चीज़ें हैं ये अगेन सिंटैक्स है। सी आउट के बाद में तुम लोग को दो ग्रेटर सिंबल बनाना ही पड़ेगा, इसके बाद में एक और दो ग्रेटर सिंबल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि सी आउट के अंदर हेलो वर्ल्ड, समझ रहे हो? सी आउट के अंदर तुम लोग हेलो वर्ल्ड डाल रहे हो, इसका मतलब हेलो वर्ल्ड है ना, तुम्हें आउटपुट में मिलेगा। इसके बाद में दो ब्रैकेट्स, सिंटैक्स हो गया। उसके बाद में तुम लोग को एंड एल मिलेगा। व्हाट इज एंड एल? इट इज नॉट एंड वन, इट इज एंड एल। एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। इसका मतलब होता है तुम लोग यहाँ पर इतना कोड लिख रहे हो, ठीक है, इसके बाद में लाइन एंड हो रहा है, इसके बाद में रिटर्न के बाद में लाइन एंड नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो लाइन एंड यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर है। देखो हम लोग इस कोड के अंदर एंड लाइन इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा आखिरी लाइन नहीं है, ठीक है। हमारा आखिरी लाइन ऑफ कोड तो ये है, इस फंक्शन के अंदर हमारा पहला लाइन है, ये आखिरी लाइन तो ये है। सो हम लोग पहला लाइन को एंड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोड एंड होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग रिटर्न यहाँ पर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न हम लोग को ये चीज़ कुछ नहीं है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिटर्न यहाँ पर लिख रहे नहीं है, हम लोग यहाँ पर रिटर्न लिख रहे नहीं है, तो हम लोग को इस सेमीकॉलन की और एंड लाइन की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सेमीकॉलन डाल देंगे, समझ रहे हो। बट हमें रिटर्न 0 यहाँ पर डालना है, या इसलिए हम लोग यहाँ पर एंड लाइन लिखे हैं, क्योंकि हमारे नीचे रिटर्न है। रिटर्न के पास एंड लाइन नहीं है क्योंकि रिटर्न के नीचे कुछ है ही नहीं, सो सेमीकॉलन, विच मीन्स दैट दिस इज एंड्स हियर एंड दिस एंड्स हियर। उसका मतलब रिटर्न 0 सेमीकॉलन। बता दिया ना मैं रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है। हम लोग इस फंक्शन के अंदर 0 डाल रहे हैं ताकि ये कोड वर्क कर सके। इंट यहाँ पर है इसीलिए हम लोग 0 डाल रहे हैं, ये ऐसे काम करता है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, उसका मतलब होता है इस इतना ही हमारा कोड। सो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे तो हमें मिलेगा समथिंग लाइक दिस इन आउटपुट, हेलो वर्ल्ड, ऐसे बोल के कुछ दिखाई देगा, समझ रहे हो। बस सिंपल है, दिस इज द बेसिक सिंपलेस्ट कोड। ईजी लग रहा है ना? हाँ हाँ बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, C++ इज वेरी ईजी। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे नया फाइल। अब हम लोग खुद एक फाइल बना के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टर्मिनल क्लियर करेंगे, आउटपुट क्लियर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक और कोड लिख के ट्राई करेंगे। ओके, दिस इज आवर कोड, इट्स डन। अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे। एज यू कैन सी द आउटपुट इज हियर सेइंग हाई। यहाँ पर हाई दिख दिया मैंने, यहाँ पर हाई आ गया, बस इतना ही है, सिंपल। टू प्रिंट हाई इन आवर टर्मिनल, दिस इज द कोड विच वी हैव टू राइट इन C++। अभी पाइथन में कंप्लीटली डिफरेंट होगा, C++ इज द हार्डेस्ट लैंग्वेज फॉर मी। ओके, इतना समझ लिया, बेसिक आउटपुट डन। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि लाइन बाय लाइन कैसे वर्ड्स को प्रिंट करेंगे। अभी मैं तुम लोगों को एक कोड दिखाता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड कैसे काम करता है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो सी आउट वेलकम, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन हो गया, एंड लाइन। यहाँ पर इस सेकेंड लाइन यू कैन सी दिस एज 2 second line, and you can see it is as a third line, my channel, third line, finished, right. So basically this code prints welcome to my channel line by line, इतना ही है बस। ऐसे हम लोग ऐसे समझो कि ये एक वर्ड है ना, एंड लाइन का मतलब ये एक वर्ड एक लाइन होता है, ठीक है। हम लोग टोटली 3 लाइन्स में इस वाले आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं बस। हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इस आउटपुट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब इस कोड को देखो, कॉन्सेप्ट से सेम होगा बट चैप्टर्स डिफरेंट है। मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग में इजी होता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एक्चुअली टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है इसकी डिफिकल्टीज। अब इसको समझो, हैशिंग टू डायरेक्ट स्ट्रीम हो गया, यूजिंग नेम स्पेस हो गया, इंट हो गया। अभी हम लोग नया चीज़ें सीखने वाले हैं विच आर रिटर्न टाइप्स, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट चैप्टर 1, राइट। String, int, char, bool, float. These are the return types. Okay, I will explain you what exactly this means. So, अभी तुम लोग यहाँ पर दे सकते हो string name is equals to ghost। इसका मतलब क्या होता है? मतलब string का मतलब पता है ना आपको, मैंने एक्सप्लेन किया था। string का मतलब होता है इट्स अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स। इसका मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गोस्ट हो गया, मैं यहाँ पे गोस्ट लिख दिया। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है तुम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। हम लोग वही किया यहाँ पे, देखो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू गोस्ट, समझ रहे हो। यहाँ पर हम लोग नेम, यहाँ पर एक फंक्शन देख रहे हो नेम, ठीक है। हम लोग स्ट्रिंग नेम, इसका मतलब नेम इज इक्वल्स टू हम लोग गोस्ट रख दिया। देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग नेम इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, गोस्ट रख दिया, ठीक है, गोस्ट रख दिया। सो अभी हमारे हिसाब से यहाँ पर एक इमेजिन एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का नेम, ये बॉक्स का नाम है नेम, इसके अंदर हमारा गोस्ट है, ठीक है। ये देखो हमारा गोस्ट है ना इस बॉक्स में सेव हो गया। हम लोग यहाँ पर इसके सामने स्ट्रिंग रख चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि नेम, इसके अंदर जो कुछ भी कैरेक्टर्स है वो स्ट्रिंग ही होने चाहिए। देखो मैंने स्ट्रिंग रख दिया, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रख दिया। तो अभी मैं नेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिख सकता हूँ। मैं अभी नेम के अंदर नंबर नहीं लिख सकता। अगर मुझे नंबर लिखना है तो मुझे इसके सामने इंट डालना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। देखो मैंने इस एज के सामने इंट रख दिया। इसका मतलब होता है कि एज के अंदर इंटीजर्स है, इसका मतलब नंबर्स है। तुम लोग देख सकते हो इंट एज इज इक्वल्स टू 18, इसके अंदर नंबर्स है और इसके अंदर नंबर्स नहीं है, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स है। तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू गोस्ट। सो मैंने क्या कर दिया, नेम इज इक्वल्स टू गोस्ट बना दिया, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप हमने दे दिया स्ट्रिंग।
और हम लोग बता रहे कि भाई कंप्यूटर को बता रहे कि भाई नेम इज इक्वल्स टू गोस्ट रख ले अब दिमाग में, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। भूलो मत, यहाँ पर एक कंडीशन है कि डबल फुल स्टॉप रखना चाहिए जब भी तुम लोग लिख रहे हो एक अल्फाबेट्स को। इसका मतलब वर्ड्स को जब भी तुम लोग लिख रहे हो स्ट्रिंग के अंदर, तो तुम्हें डेफिनेटली इसको नहीं भूलना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन किया था इसके अंदर भी। सी आउट के बाद में तुम लोग को ये 2 सेमीकोलन रखनी ही चाहिए। ये सिंटैक्स है, ठीक है। यू डोंट आस्क मी एनीथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ सिंटैक्स, जस्ट फॉलो करो बस। इसके बाद तुम लोग को आता है इंट एज इज इक्वल्स टू 18। सो इंट का मतलब होता है इंटीजर्स, एज इज इक्वल्स टू 18 डाल दिया, उसके सामने इंटीजर्स डाल दिया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, एज के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही होने चाहिए, इसका मतलब ये है। उसके बाद में 4 का मतलब होता है कैरेक्टर्स। ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब होता है कि ग्रेड के अंदर हम लोग ए ग्रेड मिल चुका है स्टूडेंट को। अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि स्ट्रिंग और 4 के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं समझा देता हूँ। ये होता है ना कि स्ट्रिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो, ठीक है, हेलो लिख सकते हैं। पर कैरेक्टर्स के अंदर क्या कर सकते हैं ना, हम लोग कैरेक्टर्स के अंदर ओनली एक ही वर्ड को लिखते हैं, ओनली सिंगल अल्फ़ाबेट, नॉट इवन वर्ड, एक ही अल्फ़ाबेट को लिखते हैं। वो भी देखो सिंटैक्स भी डिफरेंट होता है इसको। देखो हम लोग स्ट्रिंग के अंदर ये 2 इस्तेमाल करते हैं सेमीकोलंस जैसे स्ट्रिंग के अंदर, बट हम लोग कैरेक्टर्स के अंदर सिंगल कोटेशंस को यूज़ करते हैं। इसके अंदर डबल कोटेशंस को यूज़ करते हैं। इसे सेमीकोलन नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज कोटेशंस। डबल कोटेशंस इस्तेमाल करते हैं। इसके कैरेक्टर के अंदर हम लोग सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए हैज़ सिंगल कोटेशन, सो it is a character. You can fill only single word into characters, and string contain multiple type of characters which makes an entire word. As simple as that. So this is the difference between this and this. Alright, so हो गया, character हो गया। हम लोग को पास आता है boolean, pass is equals to true, ठीक है। याद है मैंने boolean क्या बोला था, boolean का मतलब होता है true और false। ओके, सो अभी ये देखो कंडीशन क्या है, boolean pass, अगर पास है ट्रू कि ये पास हो गया, ठीक है। देखो फ्लोटिंग मार्क्स 95 है तो पास ही है डेफिनेटली। सो हम लोग क्या करेंगे, पास इज इक्वल्स टू ट्रू रखेंगे। ट्रू का कौन सा फंक्शन होता है, ट्रू और फॉल्स का कौन सा फंक्शन होता है, बुलेन। सो हम लोग इसके सामने बुलेन रख देंगे। सिंपल रिटर्न टाइप बुलेन है, पास इज इक्वल्स ट्रू है, ठीक है, ये बंदा पास हो गया, इतना ही है। उसके बाद में फ्लोट तो एज इट इज तुम लोग को पता है, मैंने बोल दिया। मार्क्स इज इक्वल्स टू 9.5। देखो यहाँ पर 0.5 आ गया, सो हम लोग फ्लोट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट में है। इंटीजर्स और फ्लोट का डिफरेंस यही होता है कि फ्लोट के अंदर डेसिमल पॉइंट्स होता है और इंटीजर्स के अंदर नहीं होता, इतना ही। फ्लोट मार्क्स इज इक्वल टू 9.5। अभी मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये नाम देख रहे हो ना, नेम, एज, ग्रेड, पास और मार्क्स, इन चीज़ों को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है एक बॉक्स। इतना दिमाग में रख लो कि एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स का नाम मैंने बता दिया था, बॉक्स का नाम नेम है। इस नाम के अंदर हम लोग ने लिख दिया गोस्ट बोल के। इसके बाद में हम लोग एक और बॉक्स बना दिया, सो बॉक्स का नाम है एज और इसका एज है 18। सो ऐसे इस बॉक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, सिंपल। सो अब लोग क्या कर रहे हैं ना कि एज एक वेरिएबल होता है, ग्रेड एक वेरिएबल होता है, पास एक वेरिएबल होता है, मार्क्स एक वेरिएबल होता है, इतना समझ लो, ठीक है। इतना पूरा वेरिएबल्स है और एक एक वेरिएबल के लिए एक एक इनपुट रखा हुआ है हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ पर पूरा समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी आउट स्टूडेंट डिटेल्स। सी आउट का मतलब होता है आउटपुट देने का। सो उसके बाद में तुम लोग को तो ये लिखना होता है, उसके बाद में डबल कोटेशन डालना होता है, उसके बाद में स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद में एंड लाइन, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है। उसके बाद में सी आउट में सेकंड हम लोग ने ऐसे कुछ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट डिटेल्स एक हेडिंग जैसा, और इमेजिन यू आर राइटिंग न्यू पेज अबाउट ए न्यू चैप्टर। तुम लोग कैसे लिखोगे, चैप्टर 1 उसके नीचे हेडिंग लिखोगे ना, सेम ऐसे ही एक हेडिंग डिवाइडर है, बस नथिंग मोर। उसके बाद में आता है नेम। यहाँ पर मेन चीज़ स्टार्ट होता है। देखो हम लोग ने सी आउट के सामने नेम लिख दिया और नेम के प्लेस में हम लोग नेम ऐड कर दिया, विच इज़ दिस, ठीक है। इसके सामने हम लोग इसको ऐड कर दिया, तो अभी क्या होगा, सी आउट में हमको नेम दिख जाएगा
उसके साथ में ये नेम भी दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हो ये नेम क्या है, यहाँ पर एक नेम है। सो ये नेम ही ये वाला नेम हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सो इसका मतलब होता है कि गोस्ट। सो अभी ये क्या देगा, सी आउट में नेम, ये 2 डॉट्स, उसके बाद में गोस्ट देगा। और सिमिलरली एज के साथ होता है, एज यहाँ पर है। सो ये वाला एज यहाँ पर कोड चेक करेगा कि एज इज इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पर ऐड कर देगा। उसके बाद में ग्रेड भी वैसे ही है, ग्रेड इज इक्वल्स टू ग्रेड डाल दिया हमने यहाँ पर, ये आ गया। उसके बाद में मार्क्स इज इक्वल्स टू है, मार्क्स भी ऐसे ही कर दिया। मार्क्स को ये वाला मार्क्स लो, उसके बाद में पास, ये वाला पास कर लो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये वाला एज इट इज़ रेगुलर एंड एंड लाइन भी लिख दिया सारी चीज़ों को। यहाँ पर रिटर्न 0 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ टू सेंड इट ओवर हियर। दैट्स इट, दिस इज द कोड। अभी हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा। ओके, रन होने के बाद एज यू कैन सी आउटपुट हियर, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स है। देखो स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद में हेडिंग लाइन हम लोग ने यहाँ पर डाल दिया था, ये देखो हेडिंग लाइन आ गया। उसके बाद में नेम आउटपुट में आ गया, देखो नेम यहाँ पर ये पार्ट आ गया यहाँ पर। उसके बाद में इसको कंसिडर करता है नेम जैसे, तो यहाँ पर जाके चेक करता है कि यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू गोस्ट है, तो यहाँ पर गोस्ट प्रिंट कर देगा। उसके बाद में एज भी वैसे ही होता है, यहाँ पर एज, ये वाला एज आ गया। उसके बाद में 18 यहाँ पर एज देखता है, और यहाँ पर एज इज इक्वल्स टू 18 देखता है, यहाँ पर डाल देता है। ग्रेड के साथ भी ऐसे हो गया, मार्क्स के साथ भी ऐसे हो गया, पास इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। कंप्यूटर्स में है ना, सिर्फ एक ही चलता है, 1 और 0। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, सिंपल। सो पास इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब है कि ट्रू, कि सच में ये पास हो गया। सो 1 इट इज कंसिडर एज ट्रू, सिंपल। So this is how student details usually displays. Alright, simple. Tension मत लेना. That's it, easy. This is it. Let's dive into chapter 3. Okay, we are back into chapter 3. अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इनपुट कैसे देंगे कोड के अंदर कि हमको आउटपुट मिलेगा। Okay, look at this. हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम हो गया है तो नॉर्मल है, यूजिंग नेम स्पेस भी नॉर्मल है, इंट भी नॉर्मल है, इंट एज यहाँ पर हमारा कोड स्टार्ट होता है। और इस चैप्टर 3 के अंदर हम लोग एक नया चीज़ सीखने वाले हैं, वो है सी इन। अब ये सी इन क्या होता है? ओके, सी आउट का मतलब होता है कि आउटपुट देना, ठीक है। सी इन का मतलब होता है कि इनपुट देना, सिंपल। सो हम लोगों से इनपुट लेता है, हमारा कीबोर्ड जो होता है ना, उससे वो इनपुट लेता है, ठीक है। मैं अभी इस कोड को रन करके दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट इसको ऐसे समझो, इंट एज हो गया, मतलब एज इज ए नंबर, हम नंबर वैसे कंसिडर करेंगे उसको। उसके बाद में सी आउट हो गया, एंटर योर एज। उसके बाद में सी इन हो गया। सी इन को सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आउटपुट को ऐसे देता है तो सी इन को ऐसे देना पड़ेगा, मतलब सी इन एज, मतलब सी इन मतलब इनपुट दे रहे हैं एज को। सो सी आउट हम लोग फिर से हम लोगों ने देखा चाहिए चैप्टर 2 में कैसे मेंशन करते हैं कि ऊपर वाला फंक्शन को, वेरिएबल को कैसे ऐसे डालना है। सो एज इज एन वेरिएबल, सो सी आउट, तो ये वाले लेसर देन सिंबल्स होने के बाद तुम लोगों को एज डालेंगे। हाँ, कोड में यहाँ पर एज लिखा है, उसके बाद में इस एज को कंसिडर करना है जिसमें हम लोग इनपुट दे चुके हैं, सिंपल, रिटर्न 0। अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे। देखो आउटपुट में आ गया एंटर योर एज। अभी हम लोग मैं टाइप करूँगा 19, एंटर, एज इज इक्वल्स टू 19, सिंपल। समझ रहे हो, यहाँ पर एंटर योर एज ऐसे पूछा था ना, तो ये देखो ये वाला पूछा था, एंटर योर एज, सी आउट। सी इन क्या करना है, इसको एज लेना है, मतलब सी इन ये पार्ट है, सी इन पार्ट है, मैंने एज को एंटर कर दिया। सो ये वाला एज है, ये वाला एज क्या होगा, ये वाला एज सेव हो जाएगा वेरिएबल के अंदर। देखो सी इन होता है ना, वो हमारे कीबोर्ड से इनपुट लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिख दिया, देखो मैंने कीबोर्ड में लिखा 18 और 19 और कुछ भी लिख दिया ना, या फिर 20, ठीक है, वो वाला इनपुट ले लेता है और वो हमारे एज इज इक्वल्स टू वो वाला नंबर डाल देता है। दैट्स इट, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हो गया, देखो एंटर योर एज, सी इन एज। सो हम लोग ने एज टाइप किया 19, उसके बाद में क्या हुआ, सी आउट एज इज इक्वल्स टू 19। उसके बाद में डिस्प्ले कर दिया हमारे एज को कि देखो भाई तूने एज इंटर 19 डाला है, तेरा एज है 19, ऐसे ही सिंपल, उतना ही होता है। सिमिलरली देयर इज अनदर कोड फॉर, ऐसे ही सिंपल होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेम, इस बार हम लोग नेम का एग्जांपल देखेंगे। हैश इंक्लूड स्ट्रीम हो गया, नेम स्पेस हो गया,
इंट मेन हो गया। स्ट्रिंग नेम, उसके बाद में होता है सी आउट एंटर योर नेम, उसके बाद में है सी इन नेम, उसके बाद में है सी आउट हेलो नेम, उसके बाद में रिटर्न 0। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट देगा। देखो आउटपुट में हमको आ गया एंटर योर नेम जो यहाँ पर है, ठीक है। तो सी इन क्या करना है, हमको नेम एंटर करना है। वो वाला नेम क्या होगा, वेरिएबल में स्टोर होगा। देखो ये वाला ऐसे, इसको वेरिएबल बोलते हैं ना, सो इस पे स्टोर हो जाएगा। और सी आउट क्या करेगा, हेलो, और उस नेम को बोलेगा कि ये वाला नेम के अंदर क्या है वो वाला कर दो, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरा नाम एंटर कर दूंगा इससे। देखो इसने लिख दिया हेलो पानी। सो सिंपल, नेम इज इक्वल्स टू ऐसे हम लोग इनपुट देते हैं ना, उसके बाद में वेरिएबल कंसिडर करता है। वेरिएबल इज इक्वल्स टू, सो जब हम लोग को उस आउटपुट को बुलाते हैं तो कुछ ऐसे आंसर देता है। समझ रहे हो, दिस इज द बेसिक थिंग। तुमको कोड देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लेयर ये है, सेकेंड लेयर ये है। फर्स्ट आउटपुट हमको ये मिल रहा है, देखो। उसके बाद में सी इन लेगा जो हम लोग एंटर करते हैं। सेकेंड आउटपुट में क्या देता है, हेलो, हम लोग जो कुछ भी इनपुट किया हुआ नाम, बस इतना ही है, सिंपल। ओके, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। So next example, the another thing which we are learning in this chapter is getLine. Okay, तो this is the next code. So अभी हम लोग एक नया चीज़ इसके अंदर देखने वाला है, वो है getLine. Okay, so अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट आ गया एंटर फुल नेम, जो यहाँ पर है एंटर फुल नेम, फर्स्ट लेयर ऑफ आउटपुट। सो हम लोग टाइप करेंगे मेरा नाम, मेरा फुल नेम, एंटर कर दिया मैंने। फुल नेम इज इक्वल्स टू मेरा नाम आ गया। सो गेटलाइन यही काम करता है, तुम लोगों को सीन के जैसे इनपुट लेता है, ठीक है। सो तुम लोग पूछ सकते हो कि अभी सीन क्यों और गेटलाइन क्यों, वाई कांट वी जस्ट यूज सीन, मेक सेंस राइट। ये तो सेम एज इट इज एज सीन जैसे ही काम करता है ना। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीन एंड गेटलाइन। देखो सीन क्या करता है, एक ही वर्ड को पढ़ता है सीन। मैं अभी तुम लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, सीन और गेटलाइन के बीच में डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी मैं पहले हम लोग क्या करेंगे, सीन वाला कोड को रन करेंगे। एंटर योर नेम आ गया। देखो हम लोग क्या करेंगे, मेरा नाम इसमें फुल डाल के देखेंगे। देखो आउटपुट क्या आ गया, सिर्फ मेरा स्टार्टिंग वाला नेम ही आ गया, पीछे वाला नेम नहीं आया क्योंकि स्पेस था बीच में। ओके, सीन स्पेस को कभी काउंट नहीं करता। दिस इज द ड्रॉबैक फ्रॉम सीन। सीन को एंटायर वर्ड हम लोग फुल नहीं कर सकते, एक ही सिंगल वर्ड से ये इनपुट लेता है। उसके बाद में जो कुछ भी है आफ्टर स्पेस इट डजंट काउंट इट। बट गेटलाइन में वैसा नहीं है। देख रहे हो गेटलाइन में मैंने फुल अभी देखो मैं गेटलाइन दिखाता हूँ। गेटलाइन में कैसा आया, एंटर फुल नेम, मैंने फुल नेम डाल दिया, उसके बाद में आउटपुट भी फुल नेम आ गया। सो दिस इज व्हाट्स द डिफरेंस, दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सी इन एंड गेटलाइन। गेटलाइन को कैसे लिखते हैं, देखो गेटलाइन लिख दिया, उसके बाद में सीन लिख दिया, सीन का मतलब इनपुट ले बोल के लिख दिया, और उसके बाद में फुल नेम लिख दिया। इसका मतलब है इनपुट लेके इस फुल नेम वाले नाम से बना हुआ वेरिएबल के अंदर इसको डाल दे। समझ रहे हो, सीन इनपुट लेके इस फुल नेम नाम से बना हुआ वेरिएबल के अंदर तेरा नाम डाल दे। उसके बाद में सी आउट फुल नेम इज इक्वल्स टू फुल नेम, ठीक, आउटपुट ऐसे दे देगा। ओके, समझ रहे हो। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रिंग तो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि फुल नेम को अल्फ़ाबेट के जैसे लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग सी आउट कर रहे हैं कि फर्स्ट आउटपुट है, या देख सकते हो हम लोग फर्स्ट आउटपुट, फर्स्ट लेयर ऑफ आउटपुट। उसके बाद में गेट लाइन सी इन, मतलब इसके अंदर आउटपुट ले ले और इस वाले नाम को फुल नेम के अंदर स्टोर कर दे, विच इज़ अ वेरिएबल। उसके बाद में सी आउट, सी आउट इज इक्वल्स टू फुल नेम एंड फुल नेम इज इक्वल्स टू फुल नेम, मतलब आउटपुट के अंदर ये देखो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर ऑफ आउटपुट यहाँ पर आ गया। और फुल नेम में क्या डाला था हम लोगों ने, ये वाला इनपुट डाला था, सो आउटपुट भी ये वाला ही आएगा। दैट्स इट, दिस इज व्हाट अ गेट लाइन्स वर्क। सीन और गेट लाइन का डिफरेंस पता चला ना। सीन उसके बाद में स्पेस जो होता है उसको काउंट नहीं करता, उसके बाद में जो कुछ भी अल्फाबेट्स आता है उसको काउंट नहीं करता सीन। और गेट लाइन क्या करता है, स्पेस के बाद में जो कुछ भी है उसको काउंट करता है, स्पेस को भी काउंट करता है। दैट्स इट। Alright, now we are in chapter 4, which has so many new things, which is completely based on variables. Okay? So now we will understand what are operators. Operators are nothing but plus,
प्लस और माइनस, फाइंडिंग रिमाइंडर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो रिमाइंडर को हम लोग परसेंटेज यूज़ करते हैं, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन, प्लस के लिए एडिशन, डिवीजन के लिए डिविजिबल वाला सिंबल, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो हमारे कीबोर्ड में होता है, बिकॉज वी डोंट हैव अ सेपरेट की फॉर मल्टीप्लिकेशन। दैट्स इट, राइट? So these are called as operators, which does the operations. That's it, simple. For example, simple है, it's very simple. देखो, हैश इंक्लूड हो गया, नेम स्पेस हो गया, इंट मेन हो गया, इंट ए इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है वेरिएबल ए के अंदर हम लोग 10 स्टोर कर चुके हैं। दिखाता हूँ, देखो, इंट इज इक्वल्स टू ए के अंदर क्या है, हम लोग ने 10 स्टोर कर दिया, और बी के अंदर क्या है, हम लोगों ने 20 स्टोर किया, 20, ठीक है। सो अब ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है। इमेजिन ए एज अ बॉक्स, इन द बॉक्स ऑफ ए इट हैज अ 10 एंड बॉक्स बी में 20 है। ए के बॉक्स में 10 है, बी के बॉक्स में 20 है। एंड देन सी आउट ए प्लस बी, इसका मतलब है आउटपुट देना ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी विच इज 10 प्लस 20 और रिटर्न 0, दैट्स इट। सो अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे। देखो, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। सो सी आउट में हमको ए प्लस बी देखने को मिलेगा, जो 10 प्लस 20 है, 30 है। देखो, आउटपुट में हमको 30 मिल गया। दिस इज एन एडिशन ऑपरेटर। सिमिलरली, इमेजिन यू हैव पुट ए इज इक्वल्स टू 30 एंड बी इज इक्वल्स टू 10। सो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 10। तो कितना होगा आंसर? रन करके देखेंगे एक बार कोड को। 20, सिंपल, दैट्स इट। देयर इज अनदर कोड ऑफ एग्जांपल विच स्टोर्स वेरिएबल्स। इमेजिन हैश इंक्लूड हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, इंट हो गया, इंट एक्स, मतलब एक्स इज एन वेरिएबल, एक्स इज इक्वल्स टू 100, सी आउट एक्स, रिटर्न 0। इट्स जस्ट सम बेसिक कोड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। हम लोग ने एक्स को इज इक्वल्स है ना 100 डाल दिया, अब आउटपुट में हमको एक्स चाहिए, तो एक्स को हम लोग ये कर रहे हैं। देखो, आ गया 100, सिंपल। अब ये कोड देखो, हैश इंक्लूड आइव स्ट्रीम हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, इंट मेन हो गया, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10। अभी यहाँ पर एक ऑपरेशन देख सकते हो तुम लोग, x प्लस इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है भाई? इमेजिन यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल्स टू 10 है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 10 लेंगे, उसके बाद में x प्लस और इक्वल टू 5 था ना, प्लस और इक्वल टू 5। सो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग x प्लस 5 इक्वल कर रहे हैं। इसका मतलब x का मतलब क्या है, 10 है यहाँ पे, इसका मतलब 10 हो गया। सो यहाँ पर 10 आएगा। सो 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। सो आंसर होगा 15। ये पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है ना, जो यहाँ पर है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इस फॉर्म में, x प्लस और इक्वल्स टू 5। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, बोथ आर सेम। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15 हो गया, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 10 प्लस और, इसका मतलब ये होगा कि, इसका मतलब ये होगा कि 10 प्लस और इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। That's it. This is a type of return which we write in coding language. हम लोग बस ऐसे लिखते हैं, बस ऐसे प्लस इज इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स इन सिंटैक्स, वी कैन राइट इन दिस वे। सिमिलरली, x माइनस और इक्वल्स टू 3, x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू हाउ मच, और सी आउट क्या करता है, आउटपुट देता रहेगा। देखो, फर्स्ट वाला फंक्शन हो गया, उसके बाद में उसका आउटपुट है, सेकंड वाला फंक्शन हो गया, उसके बारे में आउटपुट करने को बोल रहे, थर्ड वाला हो गया, उसके बारे में आउटपुट, फोर्थ वाला हो गया आउटपुट। ऐसे ही चलता है ये। और इसको एक बार रन करके देखेंगे। देखो क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया। सो ये वाला कोड है ना, एक कुछ ऐसे काम करता है। देखो, सो ये वाला कोड हम लोग रन करके देखेंगे, इसका आउटपुट क्या है। देखो, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, ये पूरा हो गया। हम लोग रन करने से आउटपुट हमको ये मिलता है, ये वाला कोड रन करने से हमको ये वाला आउटपुट मिलता है। देखो आउटपुट कुछ ऐसे मिल रहा है। देखो, ओके, सो कोड रन होने के बाद में हमको आउटपुट ये मिलता है। अभी ये क्या है, x प्लस इज इक्वल्स टू 5 क्या होता है, अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सो इस वाले कोड में क्या था कि इंट x इज इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब होता है इंटीजर x वाला वेरिएबल में 10 स्टोर हुआ है। इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू 10। नाउ अब उसी वर्ड के ऊपर क्या है, x प्लस इज इक्वल्स टू 5,
सो ओके x प्लस इज इक्वल्स टू 5 है। अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब यही होता है, समझ रहे हो मेरी बात, x प्लस और इक्वल्स टू 5 इसका मतलब होता है x प्लस 5 विच इज मीन्स यहाँ पर 10 आएगा। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है 15 हो गया। सो आउटपुट में क्या है 15, समझ रहे हो मेरी बात। देखो सी आउट x, यहाँ पर आंसर जो कुछ भी आ गया यहाँ पर 15 आ गया। उसके बाद में ये वाला आउटपुट आ गया ना 15, यहाँ पर आएगा भी। सो 15 सिमिलरली ऐसे ही 15 माइनस इक्वल्स टू 3 का मतलब होता है 15 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12, ठीक है 12 हो गया। यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट में क्या आ गया 12 आ गया। सिंपल ऐसे ही चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला 5 है ना, ये वाला ऐड होता है इसको, सो पहले 10 होता है ना वो यहाँ पर आता है। सो 10 प्लस 5 को कितना हो गया 15 हो गया। सो 15 आउटपुट में दिखा देगा, इस वाले में आ गया। सो नेक्स्ट x होता है तो इसको x को ये कंसिडर करता है। सो यहाँ पर क्या हो गया 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12 हो गया। सो 12 यहाँ पर जाएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट वाला कंसिडर होगा 12 इंटू 2 कितना होगा 24 होगा। सो 24 यहाँ पे डिस्प्ले करता है और 24 आउटपुट में दिखा देता है और ये x यहाँ पर फिर से जाता है। सो 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 6 हो गया। सो 6 यहाँ पर आता है, आउटपुट में 6 दिखा देता है। देखो 15 हो गया 15, 12 हो गया 12, 24 हो गया 24, 6 हो गया 6। सिंपल, दैट्स इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट्स जंप इनटू नेक्स्ट कोड। दिस कोड इज फॉर कंपैरिजन, ओके। सो क्या होगा, हैश इंक्लूड हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, रूटीन। पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसको रन करके देखेंगे क्या आउटपुट आएगा। क्या आ गया 0 1 1 1 0 1, ये क्या है। अभी याद है मैंने तुम लोगों को बोला था कि बूलियन फॉल्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, ट्रू इज इक्वल्स टू 1 होता है, एज सिंपल एज दैट। अभी क्या होएगा, इंट ए इज इक्वल्स टू हम लोग ने 10 दे दिया, इंट बी इज इक्वल्स टू 20 दे दिया। उसके बाद में सी आउट में क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि आउटपुट में हमको दिखा दो, मतलब आउटपुट में दिखा दो कि a इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या है, देखो C++ में हम लोग क्या करते हैं पता है, अभी मैं सिंपली समझाता हूँ। a इज इक्वल्स टू बी विच मीन्स 10 इज इक्वल्स टू 20, ओके। इसका मतलब है सिंपल, a इज इक्वल्स टू बी, a और b दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पर 10 और 20 सेम नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0। सो इसका मतलब होता है फॉल्स। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों 2 बार इक्वल टू इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग एक ही बार इक्वल टू इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते कि नहीं, क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग को इस C++ लैंग्वेज में डिफरेंट ऑपरेटर्स मिलते हैं हमको। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू b इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। और इमेजिन हम लोग a इक्वल्स टू b बोल दिया, इसका मतलब होता है कि a इक्वल्स टू b। इमेजिन हम लोगों ने a डाल दिया, a के अंदर हम लोग 100 रख दिया, b इज इक्वल्स टू 0 रख दिया। सो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोग a इक्वल्स टू b लिख देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि b में भी 100 है, हो गया ना, b में भी 100 है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अभी हम लोग बोलेंगे कि a इक्वल्स टू b, सो ये गलत होगा क्योंकि a इक्वल्स टू b नहीं होगा, क्योंकि 100 और इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, दिस इज रॉन्ग, राइट। 100 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है कि a इक्वल्स टू b का मतलब होता है हम लोग इस वैल्यू को इस वैल्यू से इक्वल कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर से इस वेरिएबल को इक्वल कर रहे हैं, ना कि देयर नंबर्स को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कंडीशन में, a इक्वल्स टू b हो गया। अभी देखो यहाँ पर एक 100 होता है ना, ये वाला इसके अंदर जा रहा है तो ये b इज इक्वल्स टू 100 होगा। तो इसका मतलब ये है a में जो कुछ भी नंबर है वो b में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यही आता है। अगर तुम लोग को a इक्वल्स टू b लिखेंगे तो तब इसका मतलब होगा कि 100 इज इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिंपल, इतना समझो, बस कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझो बस, ठीक है।
हम लोग इतना याद रख लो कि हम लोग इक्वल्स टू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, a इज इक्वल्स टू b. इसका मतलब होता है 10 इज इक्वल्स टू 20. नहीं होता. 10 इज इक्वल्स टू 20 कैसे होगा, 10 इज लेस देन 20. सो ये होगा 0. सो इट्स फॉल्स. सो नेक्स्ट आता है a एक्सक्लेमेटरी मार्क इज इक्वल्स टू b. अभी ये क्या है भाई, ठीक है. ओके, इस वाले चैप्टर में तुम लोगों को बहुत सारे ऑपरेटर्स मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूज होगा. क्योंकि थियरी पार्ट बताने से हम लोग जब भी कोड के अंदर से जाते हैं ना तभी दिमाग में चढ़ता है. इवन इट हैपेंस टू मी. ओके, आई वाज स्टार्टिंग लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट्स एंड आई रिमेंबर दिस एंड दैट एंड ऑल. जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. Hence you are going with your code, it will easily get into your brain. That's why I'm trying to explain you guys things which is equal to understanding first theory and then implementing it. If you are going with directly code, understanding what exactly going on there will save so much of time. This is my personal experience. मैं भी ऐसे ही करा था, इसलिए मुझे दिमाग में चढ़ गया. कौन पढ़ता है अगर मैं जाके थियरी पढ़ोगे, वाटर ऑपरेटर्स, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे पूरा टाइम वेस्ट हुआ. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कोड में उतरेंगे और समझेंगे. अभी इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं ना हम लोग, हमारे C++ यानी कि कंप्यूटर भाषा में इसको नॉट बोलते हैं. नॉट मतलब वही है जो तुम लोग सोच रहे हो इंग्लिश वाला नॉट. नहीं, नॉट इज इक्वल्स टू नहीं. ठीक है, अभी इस वाला कंडीशन में क्या हो गया, a नॉट इक्वल्स टू b. करेक्ट है ये तो, a नॉट इक्वल्स टू b. 10 कैसे इक्वल हो गया, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 20. यही वो बोल रहा है कि 10 इज नॉट इक्वल्स टू 20. हाँ, ये तो ट्रू है. और ट्रू का मतलब बुलियन में क्या होता है, 1. सो आंसर क्या है, 1. सिंपल. एंड नेक्स्ट थर्ड वाला, a इज लेसर देन b. हाँ, लेसर देन b है. ये तो 10 तो कम है b 20 से, तो उसका मतलब हो गया हाँ ट्रू. ट्रू, सो 1. इसके बाद में a इज ग्रेटर देन b. अरे भाई तो गलत है, 10 तो कम है b से, 20 तो ज़्यादा है, तो ये तो गलत है. तो यहाँ पर आ गया 0. हाँ, उसके बाद में यहाँ पर दो कंडीशंस आ रहे हैं, a इज लेसर देन और इक्वल टू b. दोनों में एक कंडीशन तो गलत है. ठीक है, अभी देखो, a लेसर देन और इक्वल्स टू b और इक्वल्स टू b, इसका मतलब a b से कम और इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो 20 से तो 10 कम ही है, इक्वल टू तो नहीं आएगा और आएगा. सो और यहाँ पर कंडीशन दे चुके हैं ना कि अगर ये कम है या फिर इक्वल है, तो कम है तो ये तो सच निकला, सो ट्रू. सिंपल. नाउ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ये तो गलत है, ये तो बहुत छोटा है b से. सिंपल. दैट्स इट. दिस इज द आउटपुट विच वी आर गोइंग टू गेट. दैट्स इट. एंड देन लेट्स जंप इनटू नेक्स्ट कोड, logical operators. Now what are logical operators? Now we are going to understand about logical operators. So hash include हो गया, namespace हो गया, int हो गया. इस बार हम लोग रिटर्न टाइप क्या दे रहे हैं, x. boolean, इसका मतलब होता है प्लस और इसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स. ठीक है, boolean का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स. x इज इक्वल्स टू ट्रू एंड y इज इक्वल्स टू फॉल्स. और ये वाला लॉजिक गेट्स और ये वाला सिंबल्स है ना, एंड और नॉट के सिंबल्स होते हैं. ठीक है, पता है ना आप लोग को, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट. एंड गेट, और गेट, नॉट गेट. सो व्हाट इज एंड गेट, नॉर गेट और ऑट गेट्स? देखो, अभी मैं इस गेट्स के बारे में डिटेलली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बट इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. यू कैन जस्ट इग्नोर इट, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. दीज आर द गेट्स, हाउ इट लुक्स लाइक. तुम लोग जाके पर्सनली स्टडी करो उसके बारे में, बिकॉज इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. आई एम जस्ट रेफरिंग दिस इज हाउ इट वर्क्स. Yeah, do it because I learned it on myself. Okay, let's begin to the next one, which is increment. Okay, so this code explains how increment works. First, look at this code. Hash include hash stream, use namespace, int main हो गया, int x is equals to 5. और इसके बाद में x प्लस प्लस आता है, सी आउट x, मतलब ये वाला x को प्रिंट कर दे. प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? ओके, देखो, 5 प्लस प्लस का मतलब होता है 5 को हम लोग एक वैल्यू से ऐड करेंगे, इसका आंसर होता है 6. सो अभी 5 माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, 4. सिंपल. सो इसका मतलब होता है कि 5 प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक नंबर से उसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं. रन करके देखेंगे, देखो आउटपुट में आ गया 6. सिंपल. दैट्स इट. दिस इज वेरी सिंपल वन. उसके बाद में हम लोग को आता है कैलकुलेशन पार्ट.
So this code explains how calculation thing works. Simple. It's like a formula. देखो तुम लोग a है यहाँ पे, b है यहाँ पे, c, तीन वेरिएबल्स है, a प्लस बी इंटू सी, सिंपल रिटर्न 0. उसके बाद में इसको एक बार रन करके देखेंगे क्या है. आंसर आ गया 20. 10 प्लस 5 कितना हो गया. तो यहाँ पर तुम लोग को दिखेगा आउटपुट ये. सो ये वाला कोड होता है ना, सो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये बोर्ड मॉस को फॉलो करता है, विच मीन्स दैट यू आर फर्स्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई द टर्म्स एंड देन यू विल ऐड बी एंड सी को मल्टीप्लाई करते हैं. 5 into 2 कितना हो गया 10, और 10 को ए से ऐड करते हैं, इसका मतलब 10 को 10 से ऐड करते हैं इसका. सो फर्स्ट क्या करता है ना, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन करता है, उसके बाद में उसको नंबर से ऐड करता है. सिंपल. नथिंग इन दिस कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये वाला डिफरेंट टाइप्स में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि it's just to understand a certain language. Okay, you don't have to go in deep with any single language in this entire world. Everything is so much. तुम लोग कुछ भी याद नहीं रख सकते, तुम्हें बस फ्लो अंडरस्टैंड करना चाहिए. याद रखते जाओगे कि बहुत सारे चीज़ें हैं C++ में या फिर पाइथन में याद रखने के लिए, तुम लोगों को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग, बट इट डजंट मेक एनी सेंस. Trust me. Understand the things. That's it. That's why I'm covering different type of codes. So this is all about chapter 4.